ദൈവനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തിനും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. അല്പനിമിഷങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരണത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അവസരം ഒരുക്കി തന്ന പാസ്റ്റർ രഞ്ജു മാത്യു ആൻഡ് ഫാമിലി ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അല്പനിമിഷം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. തിരക്കിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ചില നിമിഷങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. ദൈവമേ, നീ എത്ര നല്ലവൻ, നീ എത്ര വല്ലഭൻ. നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാനും സ്തുതിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം എന്ന് കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പറയാം. Jesus, we worship you. എല്ലാവരും അല്പനിമിഷങ്ങൾ വായികളെ തുറന്ന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. Father God Jesus, Father God Jesus, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah. You are a good God. ഒരു കണ്ണിനും ദയ തോന്നാതിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. അവന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ തേടി വന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് അല്പനിമിഷം സമയം സ്തോത്രം ചെയ്ത് പാടാം. സർവ്വ നന്മകൾക്കും സർവ്വദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാകുന്ന കർത്താവേ, അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ആഴത്തിൽ ഞാൻ കിടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കരം പിടിച്ച് എന്നെ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കാണിച്ച സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം. ഓ ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. ആഴത്തിൽ ഞാൻ കിടന്നു, കൂരിരുൾ എന്നെ മറപിടിച്ചു. ആഴത്തിൽ ഞാൻ കിടന്നു, കൂരിരുൾ എന്നെ മറപിടിച്ചു. നാഥൻ തിരുക്കരം തേടിയെത്തി, തന്റെ മാർവോടു ചേർത്തണച്ചു. നാഥൻ തിരുക്കരം തേടിയെത്തി, തന്റെ മാർവോടു ചേർത്തണച്ചു. സർവനന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാം യേശുവേ. സർവനന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാം യേശുവേ. അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, ദീനവും പരനേ നന്ദിയ. അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, ദീനവും പരനേ നന്ദിയ. ലോക ഇമ്പങ്ങളിൽ ഞാൻ ഭ്രമിച്ചു, ലോകമോഹങ്ങളിൽ ഞാൻ മുഴുകി. ലോക ഇമ്പങ്ങളിൽ ഞാൻ ഭ്രമിച്ചു, ലോകമോഹങ്ങളിൽ ഞാൻ മുഴുകി. കാണില്ലൊരു നാളും സ്വർഗതാതൻ, ഹൃത്തിൽ മൂഢമായി ഞാൻ ഉറച്ചു. കാണില്ലൊരു നാളും സ്വർഗതാതൻ, ഹൃത്തിൽ മൂഢമായി ഞാൻ ഉറച്ചു. സർവനന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാം
എന്നേശുവേ, സർവനന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാം എന്നേശുവേ, അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദീനവും പരനേ നന്ദിയാ. അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദീനവും പരനേ നന്ദിയാ. പാട്ടിന്റെ അല്പനിമിഷങ്ങൾ ഇതിന്റെ ചരണങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഉറവിടമായ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിക്കും, മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്റെ ഭൂമിയുടെ എന്റെ ആയുസ് തീരുന്നവരെ. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഗാനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങൾ നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ധാരാളം പേർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മരണക്കിണിയിൽ അകപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ നിരാശരായിത്തീരുന്നു. ഒരു സൈഡിൽ ഈ വലിയ വിപത്ത് നമ്മെ എന്ന് വിട്ടൊഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക നമ്മെ ഭരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവപൈതലായിരിക്കുന്ന ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ ആത്മാവ്, അവൻ നമ്മുടെ സർവമാണ്, സർവത്തിന്റെ ക്രിയേറ്ററാണ്. ഹി ഈസ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഹി നോസ് എവറിത്തിങ്. അതിനു മുമ്പ് കർത്താവ് നമ്മെ ചേർപ്പാനായി വേഗം വരും. ഈ കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ, വേദനകൾ നിറഞ്ഞ, രോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ചേർത്ത് പൊൻപുലരിയുടെ പറുദീസയിൽ നമുക്ക് കർത്താവുമായി ചേർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളെ പ്രത്യാശയുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് പാടാം. ഒരുപക്ഷെ ഒരു യോഗ്യതമില്ലായിരുന്ന നമ്മെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചു. ആ വലിയ ഗ്രേസിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. हो सारे आशीष, सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तू है. सारे आशीष, सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तू है. तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ. तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ. അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദീനവും പരനേ നന്ദിയാ. അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദീനവും പരനേ നന്ദിയാ. Hallelujah, Jesus. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, നിന്റെ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ്, നിന്റെ കരുണ എത്ര വലുതാണ്. അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ, ഉയരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കർത്താവേ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രം മതി കർത്താവേ. ജീസസ്, hallelujah. Your everlasting love, അതിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ അവിടെ ഇടയാക്കണമേ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഭാരമുള്ളിൽ നേരിടും നേരമെല്ലാം താങ്ങിടും. ഭാരമുള്ളിൽ നേരിടും നേരമെല്ലാം താങ്ങിടും. സാരമില്ലെന്നോടിടും
നോദിടും തൻ മാർവിലെന്നെ ചേർത്തിടും. സാരമില്ല നോദിടും തൻ മാർവിലെന്നെ ചേർത്തിടും. എന്നും നല്ലവൻ യേശു, എന്നും നല്ലവൻ. ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യനല്ലവൻ യേശു. ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യനല്ലവൻ. സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കവേ കമ്പമുള്ളിൽ ചേർക്കവേ, സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കവേ കമ്പമുള്ളിൽ ചേർക്കവേ, തമ്പുരാൻ തിരുവചനമോർക്കവേ പോലാകവേ, തമ്പുരാൻ തിരുവചനമോർക്കവേ പോലാകവേ. എന്നും നല്ലവൻ യേശു, എന്നും നല്ലവൻ. ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യനല്ലവൻ യേശു. ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യനല്ലവൻ. ഉലകവേയിൽ കൊണ്ടു താൻ വാടി വീഴാതോടുവാൻ, ഉലകവേയിൽ കൊണ്ടു ഞാൻ വാടി വീഴാതോടുവാൻ, തണലെനിക്കു തന്നിടുവാൻ വലഭാഗത്തായുണ്ടു താൻ, തണലെനിക്കു തന്നിടുവാൻ വലഭാഗത്തായുണ്ടു താൻ. എന്നും നല്ലവൻ യേശു, എന്നും നല്ലവൻ. ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യനല്ലവൻ യേശു. ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യനല്ലവൻ. അടുത്ത ചരണങ്ങൾ പറയുന്നു, വിശ്വസിച്ചിടാനുമൻ ആശ വെച്ചിടാനുമൻ, വിശ്വം അതിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ ആശ്രയവും യേശുവ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെയും പലപ്പോഴും മനുഷ്യരിലും പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുക. നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതൊക്കെയും വ്യഥാവാണെന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഇതുവരെയും കർത്താവിനെ കാണുവാൻ കഴിയാത്തവർ, യേശുവുമായ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയാത്തവർ എന്ന് കേൾക്കണം. ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും the everlasting gift, the everlasting treasure, അത് കർത്താവ്. ആ കർത്താവിലുള്ള ആശ്രയം, ആ വിശ്വാസം, മരിച്ചാലും ഞാൻ ജീവിക്കും, ക്രിസ്തുവിലൂടെ ജീവിക്കും. that everlasting eternal life with Christ, അതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മളുടെ ഹോപ്പ്. ഭൂമിയിലെല്ലാം അഴിഞ്ഞു പോയാലും സ്വർഗത്തിലെ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം. ആരെങ്കിലും ഈ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർ ഇതുവരെയും കർത്താവുമായിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ നിത്യത എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അടിയനെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഈ പാട്ടുകൾ പാടാം. ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുക, കർത്താവേ, ഞാനൊരു പാപിയാണ്, അങ്ങന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം, എന്നെ അങ്ങയുടെ സ്വന്തം മകനാക്കി തീർക്കണം. ഇനി മുതൽ ഞാൻ അങ്ങേക്കായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവരുടെ മേൽ നിഴലിടുന്ന യേശുവിൻ്റെ ശക്തി, ആ രക്ഷയുടെ സൗജന്യമായ ദാനം. ഇന്ന് നമുക്ക് ആ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ. ചേർന്ന് പാടാം. വിശ്വസിച്ചിടാനുമൻ ആശ വച്ചിടാനുമൻ, വിശ്വസിച്ചിടാനുമൻ ആശ വച്ചിടാനുമീ, വിശ്വമതിലാശ്വസിപ്പാനാശ്രയഭൂമേശുവ, വിശ്വമതിലാശ്വസിപ്പാനാശ്രയഭൂമേശുവ. ഇന്നും നല്ലവൻ യേശു, എന്നും നല്ലവൻ.
യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യനല്ലവൻ. രാവിലും പകലിലും ചേലെഴുത്തൻ പാലനം, രാവിലും പകലിലും ചേലെഴുത്തൻ പാലനം. ഭൂവിലെനിക്കുള്ളതിനാൽ മാലിനില്ല കാരണം, ഭൂവിലെനിക്കുള്ളതിനാൽ മാലിനില്ല കാരണം. ഇന്നും നല്ലവൻ യേശു, എന്നും നല്ലവൻ. ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും നല്ലവൻ യേശു. ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും നല്ലവൻ. ഇന്നും നല്ലവൻ യേശു, എന്നും നല്ലവൻ. ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും നല്ലവൻ യേശു. ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും നല്ലവൻ യേശു. ഇന്നലെയും എന്നും നല്ലവൻ യേശു. ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും നല്ലവൻ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കറിയാം ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഋതമിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഗാനങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ, വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസപ്പലകളിലേക്ക് എഴുതപ്പെടുവാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാട്ടുകൾ പാടി ഒരു ഉപരിപ്ലവമായ ഒരു വീതികളിലൂടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പാടിപ്പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഈ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനായിട്ട്, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പാടിയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഈ വർഷിപ്പ് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു. പാട്ടുകൾ പാടി നമ്മൾ പഴക്കം ചെന്നവരായി തീരുവാനല്ല, ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ, പാട്ടുകളുടെ വചനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസപ്പലകകളിൽ എഴുതി അത് ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായി തീരട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ അതിനായിട്ട് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. അനാഥനല്ല ഞാൻ, അശരണനല്ല ഞാൻ, അവകാശിയാണ് ഞാൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത്യുന്നതന്റെ മറവിലാണ്, ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അടുക്കുകയില്ല എന്ന് 91-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ഭൂജാതനായി എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ, എനിക്കായി തകർക്കപ്പെട്ടു, എന്നെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര സ്നേഹം, എത്ര സന്തോഷമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഭൂമിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ആശ്രയിച്ചവർ, നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ബന്ധുജനങ്ങൾ, സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ വിട്ടുപോയെന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കണം, നീ അനാഥനല്ല, നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ നിന്റെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേലിട്ടുകൊള്ളുക. ഭാരം ചുമക്കുന്നവരെ, അധ്വാനിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പുലർത്താം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാം. ഒരുപക്ഷെ പഴക്കം കേട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് തഴമ്പിച്ച് വേദനിക്കപ്പെട്ട് മുറിവേറ്റവരായി തീരുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, there is a eternal love, there is a great news for you, that is through Jesus Christ. Come to his feet. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് കർത്താവിന്റെ പാദത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. Lord, speak to me. I need your voice, I need your touch, and I need your strength. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ശക്തി തോർന്നവരല്ല, ഇന്ന് നിന്നെ നിറയ്ക്കുവാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അടുത്ത്, നിന്റെ ഭവനത്തിൽ, നിന്റെ കസേരയുടെ അടുത്ത്, വാഹനത്തിനകത്ത്, ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുവാൻ, കാണുവാൻ, നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ, നൊമ്പരങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ കഴിയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടാം. ദൈവത്തിൻ പുത്രനാം യേശു പൂജിതനായി. ഓ താൻ വാഴ്കയാ ആകുലമില്ല നാളെയെന്ന്, ഭീതിയില്ല ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്നു, എത്ര ധന്യമേ ഈ ലോക
ജീവിതം താൻ വാഴുകയാ ആകുലമില്ല നാളെയെന്ന് ഭീതിയില്ല ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്നോർത്ത എത്ര ധന്യമേ ഈ ലോകജീവിതം അനാഥനല്ല ഞാൻ അശരണനല്ല ഞാൻ അവകാശിയാണു ഞാൻ പരദേശിയാണു അത്യുന്നതൻ തൻ തിരുനാമത്തിൽ നിത്യവും ചാരിടും ഞാൻ എത്ര ബോധമാ താൻ വാഴുകയാ ആകുലമില്ല നാളെയെന്ന് ഭീതിയില്ല ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്നോർത്ത എത്ര ധന്യമേ ഈ ലോകജീവിതം ദൈവത്തിൻ പുത്രന യേശു ഭുജാതന സ്നേഹിപ്പാൻ ക്ഷമിപ്പാൻ സൗഖ്യം നൽകിയിടുവാൻ ജീവിച്ചു മരിച്ചവൻ എന്നെ രക്ഷിപ്പാന എന്നും ജീവിക്കുന്നവൻ എന്നെ കരുതാ താൻ വാഴുകയാ ആകുലമില്ല നാളെയെന്ന് ഭീതിയില്ല ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്നോർത്ത എത്ര ധന്യമേ ഈ ലോകജീവിതം എത്ര ധന്യമേ ഈ ലോകജീവിതം എത്ര ധന്യമേ ഈ ലോകജീവിതം എത്ര ധന്യമേ ഈ ലോകജീവിതം രാത്രിയിൽ അല്പനിമിഷങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ വളരെ ശാന്തമായ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹൃദയങ്ങളെ പകരാം. ഈ കേട്ട വചനങ്ങൾ, കേട്ട ഗാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രൂപാന്തരത്തിന് കാരണമായി തീരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്ന് വരുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനെ, അങ്ങയുടെ അഭിഷക്തനെ മുറിഞ്ഞ കരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, നിന്റെ ക്രൂശിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവെ ആത്മാവിന്റെ വലിയ ട്യൂണിങ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും കാതുകളെയും അതിനായിട്ട് കർത്താവെ ട്യൂൺ ചെയ്യുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. കർത്താവെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവസഭയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ, ഈ ലൈവിലൂടെ, സൂമിലൂടെ ഒക്കെ ഈ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും അങ്ങയുടെ സ്നേഹം, കരുണ, ദയ, അതുപോലെ തന്നെ പരിപാലനം കർത്താവെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നീ അവിടുന്ന് സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. നല്ലവനായ ഈ സ്നേഹത്തെ, ദൈവത്തെ, കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ കിട്ടിയ വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ്. അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വലിയ ആഗ്രഹവും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രഷറും അത് തന്നെയാണ് കർത്താവെ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെയും ഞങ്ങളെ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കഴിയാത്തവർ ഈ മീറ്റിങ്ങിലൂടെ ദൈവസ്നേഹത്തിന് ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണം കർത്താവെ. തുറന്നും ഈ ശുശ്രൂഷ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം, ബലപ്പെടുത്തണം, മനോമൗത്തോട് എടുക്കണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ.
Thank you for watching us. God bless you all. ब्रदर रंजू, इट वाज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रेज लॉर्ड, आपके काइंड वर्ड्स के लिए, और धन्यवाद इस इनविटेशन के लिए। मैं उसके साथ साथ प्रभु के दास पास्टर विजय थॉमस को भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको भी आशीषित दे। मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, लेकिन मैं साबू पास्टर अंकल को देख रहा हूँ, प्रेज लॉर्ड, आई मीन उनकी फैमिली को भी, तो और भी कुछ नाम मैं जानता हूँ क्योंकि पिछले दिनों में यहाँ पे आके आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेज लॉर्ड मैं अपना ग्रीटिंग्स देना चाहता हूँ, दिल्ली की ओर से, नॉर्थ इंडिया की तरफ से। आई मीन जिन किसी को मैं देख पा रहा हूँ, जिन किसी की शक्ल दिख रही है उनको भी, और जिन किसी का शक्ल नहीं दिख रहा उनको भी, जहां तक आवाज पहुंच रहा है उनको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। प्रेज लॉर्ड। आमीन। अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आमीन, देख पा रहे हैं, कनेक्शन ठीक है, तो जरा एक बार हाथ ऐसा दिखाइएगा, प्रेज लॉर्ड। और अगर आपको लगता है आपका चेहरा सुंदर है तो जरूर जरूर प्रेज लॉर्ड वीडियो स्क्रीन ऑन कर दीजिएगा, नहीं तो बड़ा अजीब लगता है प्रेज लॉर्ड सिर्फ नाम देखते हुए। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो प्रेज लॉर्ड जरूर जरूर जुड़िएगा। आज परमेश्वर कुछ अद्भुत कामों को करेगा, प्रेज लॉर्ड। मैं तो अभी बड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आई मीन सुंदर गीतों को, है ना, प्रेज लॉर्ड, प्रभु के दास के द्वारा हमें सुनने को मौका मिला, प्रेज लॉर्ड। उसमें भी जुड़ने के लिए खुदा बाप ने मौका दिया। प्रभु के दास को आशीषित करे और आने वाले दिनों में विभिन्न माध्यमों में परमेश्वर उन्हें भी उपयोग करे, यही हमारी प्रार्थना है। आमीन। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आमीन, मैं सीधा वचन की ओर जाना चाहता हूं, प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन, आमीन, प्रेज लॉर्ड, गुजरात से जुड़े हुए, ना विभिन्न जगहों से जुड़े हुए लोगों के लिए, आमीन, एक बहुत ही बड़े आशीष का कारण होगा। मैं पर्सनली विश्वास करता हूं, प्रेज लॉर्ड। इसके लिए मेरे आज सरमन का टाइटल, प्रेज लॉर्ड, होगा कि योर गॉड इज बिगर देन योर जाइंट। आपका परमेश्वर आपके जाइंट से बड़ा है, प्रेज लॉर्ड। आमीन, है ना। आप जहां कहीं भी है, आमीन, अगर आपको मन करे आराधना करने का, ताली बजाने का, अन्य भाषा में आराधना करने का, है ना, नाचने का, गाने का, कूदने का, रोकिए मत, प्रेज लॉर्ड। आमीन। क्योंकि एक समय था जब कलीसिया, प्रेज लॉर्ड, आमीन, एक जगह पर सीमित थी, लेकिन आज खुदा बाप का धन्यवाद हो, आज कलीसिया एक जगह पर सीमित नहीं है। आज कलीसिया, प्रेज लॉर्ड, मैं देख रहा हूं इसके अंदर तकरीबन 50 घरों के अंदर अभी कलीसिया, प्रेज लॉर्ड, स्थापित हो चुकी है, प्रेज लॉर्ड। इसके अंदर परमेश्वर काम कर रहा है। आप जानते हैं सबसे खुशी की बात क्या है? आप सब विभिन्न सिटी से है, आप सब विभिन्न विसिनिटी से है, आप सब विभिन्न जगह से है, और उन सब जगहों पे परमेश्वर का आत्मा भी काम कर रहा है। इसके लिए अपने आप को रोकिएगा नहीं, आनंदित रहिए। आज का वचन हमारे बीच में जरूर जरूर पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगा। मैं उसके लिए आपका ध्यान सिर्फ एक वाक्य, उसका भी आधे वाक्य में लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि ये वचन आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके लिए मैं आज आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं पहला शमूएल 17वां अध्याय, उसका 26वां वाक्य। 1 Samuel chapter 17 verse number 26. 1 Samuel chapter 17 उसका 26. 1 ശമൂവേൽ 17ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 26ാമത്തെ വാക്യം. അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ വായിക്കത്തുള്ളൂ. उसका दूसरा भाग मैं पढ़ूंगा, है ना. I'll just read the second part of it. इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, David is asking a question. दाऊद एक सवाल पूछता है, ये बेखतना फिलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर के सैन्य दलों को चुनौती दे रहा है? मैं एक और बार बोलूंगा, ये बेखतना फिलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर के सेना दलों को चुनौती दे रहा है? जहां कहीं भी आप आइए, 1 मिनट हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से मांगेंगे कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे। यहोवा जिंदा खुदा, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। खुदा परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं। खुदा बाप, वचन बोलना आसान है खुदा, लेकिन प्रभु जी वो क्रिया करें वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। खुदा बाप, उत्पत्ति के समय से खुदा बाप क्रिया करने वाले पवित्र आत्मा आज हमारे दिलों में, आज हमारे मनों में, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारे रोगों के मध्य में, हमारे विषयों के मध्य में खुदा बाप आपका पवित्र आत्मा का क्रिया हमारे बीच में हम प्रार्थना करते हैं। एक और बात प्रभु जी विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप अद्भुत काम करेंगे। खुदा बाप, सारा आदर महिमा आपके इकलौते पुत्र जिंदा खुदा यीशु को देते हैं और उन्हीं के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। जहां कहीं भी ये लोग विश्वास करें, आइए मिलके कहे आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। आई मीन इस कहानी को हम अच्छी तरह जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज से कई साल पहले मैंने एक कहानी सुना था प्रभु के दास सेल्वराज जी के द्वारा, और कहानी एक ट्रू इंसिडेंट है जो रशिया में घटा था। साइबेरिया नामक जगह, आप जानते हैं साइबेरिया सबसे वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है, बहुत ठंडी जगह है। तो वहां पे 7 पास्टरों को पकड़ा गया था, प्रेज द लॉर्ड, जो अंडरग्राउंड चर्चेस चला रहे थे। ये अंडरग्राउंड चर्च चलाने वाले 7 पादरियों को पकड़ा गया और उनको यीशु को ठुकराने के लिए बोला गया, लेकिन वो ठुकराए नहीं यीशु को। आमीन। फाइनली उनको खत्म करने के लिए साइबेरिया में, आमीन, ठंड के समय में, स्नो में उनको लेकर गया। आमीन। इन 7 को लेके गए। आमीन। आर्मी वहां पे खड़ी थी। आमीन। कई सारे कैप्टन भी वहां पे था, कई सारे लोग थे। उन लोगों ने इस व्यक्ति को क्या किया, 7 को खड़ा कर दिया। 7 प्रभु के दासों को खड़ा कर इस प्रकार से बोला, देखो आग भी तैयार है, 7 बढ़िया कपड़े हैं, गर्म पानी भी तैयार है। या तो तुम यीशु को ठुकरा के तुम्हें कपड़े भी मिल जाएंगे, आमीन, तुम्हें गर्म कपड़े भी मिल जाएंगे, तुम्हें आग भी मिल जाएगा, तुम्हें पीने के लिए गर्म पानी भी मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारा वस्त्र उतारा जाएगा और तुम्हें एक एक करके ठंडे पानी में इस आइस के ऊपर रख दिया जाएगा और तुम धीरे धीरे करके मरोगे। एनीवेज प्रभु के 7 दासों ने क्या किया, अपने अपने शर्ट को उतारा, उन्होंने अपना पैंट उतारा, पूरा नग्न होने के बाद आमीन, वो बिल्कुल प्रेज द लॉर्ड, जहां पे सबसे ज्यादा आइस था वहां पे जाके वो खड़े हो गए। कुछ दूरी में कप्तान चेयर लेके, आग सब कुछ लगा के, आमीन, वहां पे गर्म पानी सब कुछ लगा के, आमीन, इस तरह खड़ा रहा। अब आप जानते हैं प्रेज द लॉर्ड कि अगर जब आदमी बहुत देर पानी के अंदर ठंडे आइस में रहता है तो उसका ब्लड है ना, धीरे धीरे जो उसका जो है ना प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है और वो धीरे धीरे करके मर जाता है। तो ऐसे समय बीतता गया, समय बीतता गया तो धीरे धीरे हर एक पास्टर जो है कमजोर पड़ता गया और वो धीरे धीरे मृत्यु के करीब आने लगे, वो धीरे धीरे गिरने लगे। तो सबको समझ आ गया कि ये मरने वाले। जब ये धीरे धीरे इनके साथ ये हो रहा था तो कप्तान थोड़ा दूर बैठा हुआ था, और जब कप्तान थोड़ा दूर बैठा हुआ था तो कप्तान इस प्रकार से है ना वहां पे खड़े होके एक दृश्य को देखता है, और वो दृश्य इस प्रकार से है, प्रभु के दास सेल्वराज बताते दृश्य इस प्रकार से था कि वो देखते हैं कि 7 प्रभु के दास के ऊपर एक एक स्वर्गदूत खड़ा था। 7 प्रभु के दास के ऊपर 7 अद्भुत स्वर्गदूत खड़े हुए थे, आमीन। और जैसे जैसे एक एक प्रभु का दास आमीन गिर रहा था, जैसे पहला प्रभु का दास जब गिरा और वो पानी के अंदर गया तो उन्होंने देखा कि जब वो मरकर प्रेज द लॉर्ड, एक स्वर्गदूत क्या करता है, उनकी आत्मा जैसे ही उठती है उसके ऊपर मुकुट लगा देते हैं। दूसरा जब मरा वो देखते हैं कि फिर स्वर्गदूत मुकुट लगा देता है। तीसरा मरा वो देखते फिर मुकुट लगा देता है। चौथा, पांचवा, छठा, जो 6 जने मरे उन्होंने देखा कि वो स्वर्गदूत क्या है, जैसे ही वो आमीन पुनरुत्थान करते हैं, आमीन, वहां पे उनके ऊपर मुकुट लगाते हैं। लेकिन जब 7वां प्रभु के दास को देखा तो उन्होंने, कप्तान ने इस प्रकार से देखा कि स्वर्गदूत ऊपर जा रहा है और स्वर्गदूत नीचे आ रहा है, स्वर्गदूत ऊपर जा रहा है, स्वर्गदूत नीचे आ रहा है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आमीन। तो बाद में पता लगता है ना कि कुछ देर बाद वो ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, है ना। और फिर स्वर्गदूत ऐसा ही कर रहा है। अचानक क्या होता है ना, जो प्रभु का जो 7वां दास था, है ना, वो ध्यान से देखते हैं तो 7वां दास बोलता है, प्रभु मुझे तेरे साथ भी रहना है लेकिन मुझे मरना भी नहीं है। जब जब प्रभु का दास बोलता था मुझे तेरे साथ रहना नहीं है तो जो स्वर्गदूत था वो ऊपर चला जाता था, लेकिन उसका मन कहता था नहीं नहीं प्रभु मैं तेरे लिए मरना चाहता हूं, है ना। तो स्वर्गदूत वापस मुकुट लेके आता था। एनीवेज, है ना, कुछ देर बाद आप जानते हैं क्या हुआ, आमीन, वो प्रभु का दास गिव अप करता है और वो जल्दी से वापस आता है, थोड़ा सा गर्म पानी लेता है ना, अपने आप को ढक लेता है, बिल्कुल आग के पास बैठ जाता है और कहता है कि मैं कम्युनिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, है ना, मुझे नहीं चाहिए यीशु, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे मरना नहीं है। ये कप्तान उसको देखकर कहता है, और वो बिल्कुल शॉक में रहता है क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता कि क्या हो रहा है। वो क्या करता है आपको पता है, वो उस पास्टर को देखता है और उसको देख के बोलता है, अरे मूर्ख तूने क्या किया, है ना। उस कप्तान ने क्या किया, अपने कपड़े उतारे, अपना पैंट उतारा, अपना सब कुछ उतार कर उसने क्या किया, वो बिल्कुल बीच में जाके खड़ा हो गया, ठंडे पानी में अपने आप को कूद गया और उसने बोला ये यीशु जिंदा है और यही असली खुदा है। और वो मुकुट जो उसको मिलना था प्रभु के दास को, वो उस कप्तान को मिल गया। ये टेस्टिमनी उस प्रभु के दास ने बोला जो 7वां वाला था, और उसने कहा दैट डे आई लॉस्ट माय क्राउन। मेरा कहने का मतलब है प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, अगर यहां कुछ कमी हो भी गई तो ऊपर कुछ मुकुट खुदा ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। आज प्रार्थना के द्वारा
आप विश्वास करो या ना करो, कहीं ना कहीं कुछ स्वर्गदूत नीचे आ रहे हैं और कुछ स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं। आज सवाल ये है कि हम क्या चाहते हैं। आज मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना के द्वारा कुछ स्वर्गदूत हमारे लिए, आपके लिए, कलीसियाओं के लिए, गुजरात के लिए, प्रेज द लॉर्ड, इस कोविड के समय में कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर हमारे लिए उतार कर लेकर नीचे आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, आपने तो गवाहियां सुनी, अद्भुत अद्भुत गवाहियां। 54 डेज वेंटिलेटर में पड़े हुए एक प्रभु के दास को परमेश्वर ने वापस जिंदा कर कर लेकर आया। क्या हमारा खुदा बलवंत नहीं है? हमारा खुदा बलवंत है प्रियो। अगर वो साइबेरिया में कर सकता है तो आज रात आपके मध्य में, आपके घर के भीतर भी परमेश्वर की आत्मा आज भी कर सकती है। वो मरा हुआ खुदा नहीं, वो पुराना खुदा नहीं, हर दिन तेरे लिए कभी ना बदलने वाला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, मतलब जो पहले सदी में किया आज भी करने के लिए ताकतवर है। आमीन। घर के भीतर भी कुछ कर सकता है। कुछ लोगों का सवाल है ना, जूम के समय में, है ना, घर के अंदर क्या होगा? प्रियो, घर के अंदर जो होता है वो बड़े बड़े कलीसियाओं में नहीं होता। आपको डाउट है तो मैं बताता हूं, आज से जरा 2000 साल जरा मुड़कर देखो। प्रेज द लॉर्ड, बड़े बड़े कलीसियाओं में अभिषेक नहीं उतरा। हमें मरकुस से आप पूछोगे तो वो बोलेगा मेरे अपर रूम में, प्रेज द लॉर्ड, 120 लोग ताली बजा के आराधना कर रहे थे। उस घर के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा, रूरा बाबा शंदले रबाका, पवित्र आत्मा नीचे उतरा। आज तू अकेला होगा, वो तेरे परिवार के साथ होगा, लेकिन जिस घर के भीतर तू बैठा है वहां पे भी आज भी पवित्र आत्मा उतरने के लिए तैयार है। तू जरा खोल के बोल कर तो दे, पवित्र आत्मा उतर कर तेरे लिए कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, ही इज अ वंडरफुल गॉड। अगर आप महसूस करते हो उस पवित्र आत्मा को, जरा ताली बजा के उसका धन्यवाद कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, ओह दैट होली स्पिरिट इज पावरफुल, ही इज अ पावरफुल गॉड। Praise the Lord. Amen. कुछ भी हमारे आराधना के लिए बैरियर नहीं बन सकता है। ഒന്നും നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു ബാരിയറായി മാറത്തില്ല। Praise the Lord. പിശാചിന് അധികാരമില്ല। Amen. उसके मध्य में काम करने वाला खुदा, Praise the Lord, घरों के अंदर उतर कर पवित्र आत्मा आज कार्य करने के लिए तैयार है। लोग कह रहे प्रेज द लॉर्ड, अगर अगली बार कोई आपसे पूछे तुम्हारा कलीसिया बंद है तो उन्हें यही बोलना, बच्चे आज से कई साल पहले भी प्रेज द लॉर्ड कलीसिया बंद किया था, लेकिन जब जब कलीसिया बंद किया और लोगों ने घर पे बैठ के आराधना करना शुरू किया तो कलीसिया छोटा नहीं हुआ, कलीसिया बड़ा ही हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज आपके घर के अंदर परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करेगा। तो जरा सवाल अभी ये है प्रेज द लॉर्ड कि काफी बार हमारे खिलाफ प्रेज द लॉर्ड ऐसे बड़े जाइंट्स खड़े हो जाते हैं, ऐसी बड़ी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है प्रेज द लॉर्ड जो हमसे बड़े होते हैं। आमीन। और ऐसा ही एक परिस्थिति अगर आप आज से कुछ साल पहले देखेंगे प्रेज द लॉर्ड, तो आमीन, इजराइल के दूसरे राजा, मैं हमेशा दूसरा राजा क्यों बोलता हूं, आमीन, मैंने देखा बहुत लोग बोलते हैं इजराइल का पहला राजा शाऊल है। प्रियो, इजराइल का पहला राजा शाऊल नहीं था, इजराइल का पहला राजा यहोवा जिंदा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी मंडल को बनाने वाला, इजराइल को मिस्रैम से छुड़ाकर लाल समुद्र से निकालकर यर्दन की नदी पार करवाकर प्रेज द लॉर्ड यरीहो के दीवार को गिराकर मन्ना प्रोवाइड कराकर प्रेज द लॉर्ड समुद्र के बीचों बीच प्रेज द लॉर्ड उनको खाना देने वाला, वो इजराइल का पहला राजा था। प्रेज द लॉर्ड, शाऊल नहीं था। द किंग, द फर्स्ट किंग वाज गॉड। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुद यहोवा पहला राजा था, लेकिन लोगों ने कहा हमें ना दिखने वाला एक राजा चाहिए, जो हम जिसको ना हम देख सके, है ना, जिसका हम नाम बोल सके, है ना। कभी कभी है ना ये आइडल वर्शिप में प्रॉब्लम ही यही है ना, लोगों को ना कोई मूर्ति चाहिए, है ना। कल हमारे पास भी कोई आए थे, है ना, और वो भी मुझे कह रहे थे कि है ना ये पास्टर जी मूर्ति में क्या दिक्कत है ना। मैंने उनसे यही सवाल पूछा, मैंने कहा मूर्ति में दिक्कत ये है, आप जरा सोच के देखिए, यहाँ पे है ना कोई भी पास्टर जी मान लीजिए, है ना, आप जरा सोच के देखिए। मैंने उनसे बोला आप कोई भी ऐसी फोटो पे, आमीन, है ना, आप मान लीजिए आपके घर पे आपके पापा जिंदा है तो आप उनकी फोटो लेकर उस पे मूर्ति उस पे हार चढ़ाकर अगरबत्ती लेके ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। अगर किया ना तो मम्मी पीछे से आके डंडा मारेगी। पता है क्यों? क्योंकि मरे हुए लोगों पर ही हार चढ़ाया जाता है, कैंडल लगाया जाता है, अगरबत्ती जलाया जाता है, जिंदा लोगों पे नहीं किया जाता। उन्होंने कहा पास्टर जी क्या बात आपने
कही है। मैंने कहा तभी हमारे कलीसियाओं में मूर्ति नहीं है, आमीन, फोटो नहीं है, क्योंकि जो यहाँ बसता है उसको अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं। आज खुदा जिंदा है प्रियो, आज उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। हम अगरबत्ती वाले लोग नहीं है, कैंडल वाले लोग नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, झुकने वाले लोग नहीं है। हम कौन से लोग हैं? आमीन। तू पहाड़ पे चल जा तो वहां मैं हूं, गाना भी है ना, पहाड़ पे चढ़ू तो तू वहां है, समुंदर पे चलू तो तू वहां है, पहाड़ पे चलू तो तू वहां है, समुंदर पे चलू तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहा जाऊं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से बहुत लोग प्रभु के दास लोग होंगे, मेरे से भी बड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड, है ना, और मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। कितने सारे पास्टर अंकल और पास्टर आंटी इधर बोल सकते हैं, आमीन, खाना खाने के समय, प्रेज द लॉर्ड, जब खाना नहीं था, आमीन, क्या तेरा खुदा तेरे लिए उतर कर नहीं आया? आमीन, मिनिस्ट्री को बर्बाद कर देगा शैतान ने बोला तो उसके मंडल में उतर कर तेरे को बचाया नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, शत्रु निकाल के फाड़ के खा जाएगा बोला तो क्या आपके लिए परमेश्वर ने कार्य नहीं किया? आज खुदा मूर्तियों में और पत्थरों में वास करने वाला खुदा नहीं, प्रेज द लॉर्ड, जिंदा खुदा है। अगली बार कोई पूछे प्रेज द लॉर्ड कि आप अगरबत्ती क्यों नहीं लगाते, तो उन्हें बोल देना सर जी यही कारण है, अगरबत्ती वाला फोटो में रहता है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मेरा वाला जो है, मैं जहां बोलूं मेरे लिए उत्तर कराने वाला खुदा है, प्रेज द लॉर्ड। और बड़े ही दम से हमें ये बोलना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि अपना खुदा जिंदा परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। कहने का तात्पर्य ये है, इजराइल के सामने उसके दूसरे राजा शाऊल, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, जिसे जो है, आमीन, अभिषेक किया गया शमूएल के द्वारा, आमीन, जो एक वॉरियर था, सारे इजरायलियों से लंबा था वो, आमीन, है ना, और उसके सामने एक बड़ा व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था गुलायत। गुलायत के बारे में बताया जाए, उसकी एनाटॉमी के बारे में बताया जाए तो गुलायत जो था 9 फुट 6 इंच था, 9 फुट 6 इंच। आप एनबीए में भी जाएंगे, जो बास्केटबॉल खेलते हैं उनमें भी 7.5 8 फुट को बहुत, 8 फुट तो होता ही नहीं है, लेकिन है ना 7.5 फुट तक को बहुत बड़ा माना जाता है। तो ये तो 9.5 फुट था, 9 फुट 6 इंच था, आमीन। और उसके बारे में बताया जाए तो तकरीबन 80 किलो का, 80 to 100 केजीज का उसने क्या किया, आर्मर पहना हुआ था। तो आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका ताकत क्या था। और फिर उसको एक पेट नेम भी दिया गया था जिसका नाम था चैंपियन। उसको चैंपियन, चैंपियन का मतलब आप जानते क्या है, कभी ना हारने वाला। मतलब जो सामने खड़ा था वो कहीं युद्ध लड़ चुका है लेकिन वो एक भी युद्ध अभी तक हारा नहीं है, आमीन। तो उसका घमंड उसके अंदर था, आमीन। वो घमंड फिलिस्तियों के भी अंदर था, लेकिन वो भूल गया जिस मिट्टी पे वो खड़ा है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, वो उसका पहला हार होगा, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शत्रु और कहीं पे कितनी बार भी जीत जाए, लेकिन जब वो एक परमेश्वर के बच्चे के सामने खड़ा होता है, आमीन, past victories can be defeated in a minute when the Holy Spirit works। है ना, परमेश्वर की आत्मा जब काम करती है, शैतान के पुराने विक्ट्री मायने नहीं देती है। था वो चैंपियन, हाइट बड़ा लंबा है, ताकतवर था, मसल बड़े थे, उसको लगता था वही जीतेगा। इसी के लिए आके वो ललकारता था, अरे तुम लोगों में से कोई एक मर्द है जो मुझे हरा दे? क्या इजराइल के खुदा में कोई एक व्यक्ति नहीं है जो मुझे हरा सकता है? अगर हरा दे तो हम झुक लेंगे, हम सरेंडर कर लेंगे, है ना। और 40 दिन तक प्रियो ये चलता रहा, 40 दिन तक ये चलता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, है ना। सब डरे बैठे हुए थे। सब क्यों डरे बैठे हुए थे मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन, है ना, सब क्यों डरे बैठे होते, पहला रीजन ये है। अब देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, प्रभु के दास, है ना, जो जिन्हें अनॉइंट किया गया था राजा के रूप में, जो शाऊल थे, है ना, वो अधिकतर लोगों में से लंबे थे, है ना। उसके बारे में बताया जाता है कंधे से और नेक से, दोनों में, सर से और कंधे से, वो बाकी सारे इजरायलियों से लंबे थे। तो अगर एक तात्पर्य के लिए भी अगर ले लिया जाए तो उसका मतलब यह है कि अधिकतर लोगों से ताकतवर थे शाऊल। लेकिन जब शाऊल ने देखा उससे भी बड़ा एक व्यक्ति आया है तो शाऊल घबरा गया। जब शाऊल घबरा गया तो बाकी लोग, बाकी सेना, बाकी जितने खड़े थे, सारे इजरायली घबरा गए। इधर एक स्पिरिचुअल ट्रुथ मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जितने लोग अपने घर के सर है, आमीन, जो मर्द है, आमीन, जितनी माएं हैं, है ना, जिनके ऊपर अथॉरिटी है, मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं,
प्रेज द लॉर्ड, अगर आप हार मान जाएंगे तो आपका परिवार भी हार मान जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, अगर आप प्रेज द लॉर्ड गिव अप कर देंगे, बाकी लोग भी गिव अप कर देंगे। आज अगर आपने गिव अप किया है तो मेरी आज आपसे निवेदन है प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, आपको गिव अप करने के लिए नहीं बोला है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला है। क्यों शाऊल ने गिव अप कर दिया? क्योंकि शाऊल अपने हाइट के ऊपर बल रखता था, है ना। शाऊल को अपने दम पे बड़ा ताकत था, लेकिन उसे परमेश्वर का बल का जो ताकत था वो भूल गया। आमीन। आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है प्रियो, सामने खड़ा हुआ जाइंट बड़ा हो सकता है, सामने खड़ा हुआ परिस्थिति बड़ा हो सकता है, सामने खड़ा हुआ आमीन दुष्ट आत्मा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो खुदा से कभी बड़ा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर आप दानियल से पूछेंगे, पहले दिन प्रार्थना सुनी गई। कई लोगों को ये डाउट रहता है प्रेज द लॉर्ड कि क्या परमेश्वर प्रार्थना सुनता है? आमीन। मैं आज आपको ये निर्णय के साथ बता सकता हूं, हमारा खुदा प्रार्थना सुनता है और वो स्वर्गदूत को भेजता भी है उत्तर भेजने के लिए। आमीन। लेकिन हमारे कंटिन्यूअस प्रेयर से ही वो प्रार्थना हमारे पास पहुंचती है। देखिए, जब आपके खिलाफ प्रेज द लॉर्ड एक सेनापति खड़ा हो तो भूलना मत, परमेश्वर एक दूसरे सेनापति को उसे हराने के लिए परमेश्वर आत्मिक मंडल में कुछ चीजों को तैयार कर रहा है। मैं एक और बार बोलूंगा, अगर आपके खिलाफ एक सेनापति खड़ा है आपको खत्म करने के लिए, वो दूसरी ओर परमेश्वर दूसरे एक व्यक्ति को तैयार कर रहा है आपके लिए कार्य करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, मैं एक और बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसे। पीपल ऑफ गॉड, जरा ध्यान से देखिएगा, इजराइल के लोग, अगर आप मेरे को ध्यान से समझेंगे इस चीज को तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं। देखिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। देखिए, इजराइल के लोग रो रहे थे, खुदा हमें कब बंदुआई से निकालेगा, हमें कब बंदुआई से निकालेगा, बार बार रो रहा था। प्रेज द लॉर्ड, है ना, सारे इजराइल के लोग, क्योंकि वो बंदुआई में थे, कठिनाई से गुजर रहे थे। आमीन। तो मान के देखिए प्रेज द लॉर्ड, वो यहां प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। अब मान के देखिए, यहां वो प्रार्थना कर रहे हैं और वो किसको प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर यहोवा को प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि सीधा आंसर कैसे आएगा, यहां से प्रार्थना ऐसे किया तो उत्तर भी उन्हें लगा ऐसे आएगा। कभी कभी प्रियो, उत्तर ऐसे नीचे नहीं आता है। आमीन। आपको लगेगा आपने यहां प्रार्थना किया, परमेश्वर ने यहां सुना, आमीन, और आपको लगेगा ऐसा उत्तर आएगा, नहीं आएगा। कभी कभी आप यहां प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर यहां सुनेगा और उत्तर कहीं और तैयार हो रहा होगा। नहीं समझ आया तो एक और बार स्पष्ट करूंगा, आप यहां प्रार्थना कर रहे, इजरायली लोगों ने यहां प्रार्थना किया, परमेश्वर ने यहां सुना, और मीलों दूर प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर ने एक मूसा को किसी के गोद में प्रेज द लॉर्ड तैयार करके भेजा, और किसी भी इजरायली को पता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, आप यहां प्रार्थना कर रहे विषय के लिए, परमेश्वर यहां सुन रहा है, और यहां पे कई परमेश्वर ने उसका उत्तर तेरे लिए शुरू कर दिया है। ओ प्रेज द लॉर्ड, आत्मिक मंडल में तुझे शायद पता भी नहीं है, तेरे प्रार्थना का उत्तर जन्म ले चुका है, तेरे प्रार्थना का उत्तर तैयार हो चुका है, तेरे प्रार्थना का उत्तर रूप ले चुका है। आमीन। तेरा काम प्रार्थना करते रहे, जब समय आएगा आमीन, तू और वो प्रार्थना का विषय जुड़ जाएगा। आमीन। और जो विषय का उत्तर है वो आपको और मुझे जरूर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब है, शाऊल ने हार माना, वो गोलियात खड़ा होकर मजाक उड़ा रहा था, इजराइल के लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन जंगल में परमेश्वर एक मर्द को तैयार कर रहा था। आमीन। और उसका नाम दाऊद था। प्रेज द लॉर्ड। खुदा जो जानता था फिलिस्ती आने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने उससे पहले ही प्रेज द लॉर्ड आमीन एक बालक को अभिषेक कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि मेरा मजाक उड़ाने वाले के सामने एक ही व्यक्ति आ सकता है। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आज से सालों पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों चुना है पता है? क्योंकि परमेश्वर को पता था सालों बाद कोरोना वायरस आएगा, परमेश्वर को पता था एक पीड़ा आएगी, और उसके मध्य में खड़े होने के लिए कुछ प्रभु के दास, कुछ प्रभु के बच्चे, कुछ प्रभु के बेटे, कुछ प्रभु की बेटियां मुझे जरूरत है। आज आप ही वही दाऊद है जो फिलिस्तियों के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब है आमीन, अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपके लोग भी गिव अप कर देंगे। कई फैमिलीज में कई सारे फादर्स ने, कई सारे मदर ने गिव अप कर दिया है।
कई कई चर्चेस में कभी कभी लीडरशिप गिव अप कर देता है, हार मान जाता है, कई बच्चे गिव अप कर देते हैं। आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, गिव अप मत कीजिए। अगर आपने गिव अप कर दिया, ओ लॉर्ड मैंने गिव अप कर दिया, तो आज मैं चाहता हूं आप वापस डिक्लेयर करें, आई वोंट गिव अप, आई एम कमिंग बैक लॉर्ड, मैं वापस आ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, अगर तूने मुझे घर का मर्द बनाया है, अगर तूने मुझे घर की औरत बनाया है, तो हारने के लिए नहीं है। कोई भी परिस्थिति में प्रेज द लॉर्ड मैं अपने पे भरोसा नहीं रखूंगा, खुदा मैं आप पे भरोसा रखूंगा। अगर आपकी फैमिली में प्रेज द लॉर्ड अगर एक भी व्यक्ति हार मान गया, तो प्रेज द लॉर्ड, अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं और आपको लगता है आपके पापा मम्मी ने हार मान लिया, तो मैं आज चाहता हूं आप कुछ करें। आमीन। आप अपने पापा के पास जाकर बोलिए, फादर, मॉम, पापा, मम्मी, आपको हारने की जरूरत नहीं है। कोई परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती है, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। उनका हाथ पकड़िए और मिलके प्रार्थना कर कर बोलिए, पापा हम इसमें से निकलेंगे, मम्मी हम इसमें से निकलेंगे, भाई हम इसमें से निकलेंगे, बेटे हम इसमें से निकलेंगे। आज आपका प्रेज द लॉर्ड वो शब्द, आपका वो प्रेज द लॉर्ड आमीन हिम्मत आपके परिवार में किसी को छुड़ा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, बार बार किसी को तू गंदा है, गंदा है, गंदा है बोलने से वो गंदा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, इससे बढ़िया है आमीन किसी के पास जाके, बेटे के, बेटी के, बच्चों के माँ बाप के पास जाके हाथ पकड़ के बोलिए, तू गंदा नहीं, परमेश्वर का अत्यंत सृष्टि है और खुदा आपके और मेरे लिए आमीन हमारे परिवार के लिए एक अद्भुत काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, पहला चीज प्रेज द लॉर्ड, अगर कभी भी हमें हार नहीं माना, हम हार मानते तो हम अकेले हार नहीं मान रहे, हमारे परिवार में भी कई लोग, हमसे जुड़े हुए भी कई लोग अपने आप हार मानने लगते हैं। हारे हो, अगर हम हारे हैं तो वापस हमें परमेश्वर में प्रेज द लॉर्ड फिर से वापस आना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आमीन, क्यों इजराइल के लोग डरे हुए थे? आमीन, इसके लिए क्योंकि देखिए, मैं उसका टाइटल इस प्रकार से दूंगा सेकंड पॉइंट का, आमीन, द फार्दर यू आर अवे फ्रॉम गॉड द बिगर योर गोलायत लुक्स। जितना आप परमेश्वर से दूर रहेंगे उतना ही बड़ा आपको आपका परेशानी दिखेगा। द फार्दर यू आर अवे फ्रॉम गॉड द बिगर योर गोलायत वुड लुक। जितना आप परमेश्वर से दूर रहेंगे उतना ही क्या होगा, परमेश्वर ना आपका गोलायत आपके लिए बड़ा दिखेगा। आज प्रियो में आज आपको कुछ बोलना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा विक्ट्री हमारे ऊपर नहीं है, हमारा विक्ट्री जिसके साथ हम संबंध में है उसके द्वारा हमें मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, आज प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर हमें एक संबंध में जोड़ना चाहता है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज नॉट समवेयर, क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, क्रिश्चियनिटी प्रेज द लॉर्ड सिर्फ आराधना करना नहीं है, क्रिश्चियनिटी सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है, क्रिश्चियनिटी सिर्फ प्रचार करना नहीं है, क्रिश्चियनिटी एक संबंध है। प्रेज द लॉर्ड, एक पिता का एक बेटे और बेटी के साथ वाला संबंध है, एक राजा का अपने प्रजा के साथ संबंध है, आमीन, एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ संबंध है। आमीन, मसीह धर्म में लोग है ना, मैं हमेशा बोलता हूं प्रेज द लॉर्ड, मैं भी कई बार पिटा हूं प्रेज द लॉर्ड, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं, ये नहीं है कि हमें चाकू उठा के मारना नहीं आता, ये नहीं है प्रेज द लॉर्ड कि हमारे पास भी दम नहीं है, हम भी दो है ना मार नहीं सकते। आमीन, हम क्यों नहीं मारते पता है? क्योंकि हमारे खुदा ने कभी मारा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हम क्यों सहते पता है? क्योंकि हमारे राजा ने सहा है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमारा एक संबंध है स्वर्ग के साथ। हमारा लक्ष्य ही नहीं है ये दुनिया, प्रेज द लॉर्ड, हमारा तो लक्ष्य ही स्वर्ग है। प्रेज द लॉर्ड, कहने का मतलब है आमीन, दाऊद जब आया तो दाऊद को राजा वो गोलियात छोटा लगा और शाऊल को वो गोलियात बड़ा लगा। समझ आया? दाऊद को गोलियात छोटा लगा आमीन, लेकिन शाऊल को गोलियात बड़ा लगा। सिंपल रीजन है, शाऊल का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कम हो गया, दाऊद का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज सवाल बड़ा है ना, बड़ा सिंपल है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ क्या है? आप में से कई लोग मुझसे बड़े हैं प्रेज द लॉर्ड, तो इसके लिए प्रेज द लॉर्ड मैं बिल्कुल भी जज वाले है ना बिल्कुल वो मोड में नहीं बोल रहा हूं, मैं बड़े हम्बली आपको निवेदन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मुझे याद है आमीन, कई सारे प्रभु के दास जब भी मुझे मिलते हैं, आमीन, मैं छोटा हूं तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रभु के दास लोगों से मिलने का मौका मिलता है और हमेशा वो मुझे एक चीज को बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और यहाँ पे बैठे हुए भी एक प्रभु के दास ने मुझे इस प्रकार से बोला, आमीन, है ना, बेटा शुरुआत से बढ़कर अंत अच्छा होना चाहिए, इसके लिए बहुत केयरफुल रहना। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में क्या लिखा है पता है? जो अंत तक दुख को सहेगा वो परमेश्वर के मुकुट को प्राप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड, अंत तक सहना है तो परमेश्वर के साथ एक संबंध होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और उसके लिए हम अकेले नहीं है, आज पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है।
मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। आप में से कई लोगों ने एक प्रभु के दास के बारे में सुना होगा जिनका नाम डेविड विल्करसन है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। न्यूयॉर्क में प्रेज द लॉर्ड टाइम स्क्वायर चर्च के प्रभु के दास थे। आज से कई साल पहले प्रेज द लॉर्ड उनका एक, जब मैं छोटा था, एक किताब उन्होंने मेरे को, है ना, मेरी टीचर ने जो जर्मनी से थी, उन्होंने मेरे को एक किताब दिया। किताब का नाम था द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड। अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा, बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी है, द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड, है ना। और उसके अंदर प्रभु के दास विल्करसन की कहानी थी। तो मैं उनको जब फॉलो करता था तो उन्होंने अपनी एक टेस्टिमनी इस प्रकार से बोला कि जब वो परमेश्वर में बढ़े, प्रेज द लॉर्ड, तो वो परमेश्वर के साथ उन्होंने एक संबंध बनाया और रिलेशनशिप में उन्होंने वाचा बांधी, खुदा दिन का शुरुआत मैं आपसे करूंगा। तो रात को 12 बजे, जैसे रात के 12 बज जाते थे, 12 बजे से लेके 2 बजे तक वो परमेश्वर के उपस्थिति में वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाकर चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। इसके वजह से परमेश्वर ने उन्हें अभिषिक्त किया, परमेश्वर ने उन्हें उपयोग करना शुरू किया और अमेरिका में, दुनिया में विभिन्न जगहों में परमेश्वर उन्हें बुलाने लगा, लोग उन्हें बुलाने लगे, वचन में, मीटिंग्स में सब लोग उन्हें बुलाने लगे और वो धीरे धीरे बिजी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बिजी होने वाले ये डेविड विल्करसन, प्रेज द लॉर्ड, कभी कभी मीटिंग से लेट आते थे, कभी कभी 11 हो जाता था, कभी कभी 12 o'clock हो जाता था। तो जब लेट आने लगे तो वो परमेश्वर को कहते, परमेश्वर आज बड़ा टायर्ड हूं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, जरा से 10 मिनट का प्रार्थना करके फिर अगले दिन फिर मीटिंग में जाते थे, फिर मीटिंग में जाते थे, ऐसे इनका चलता रहा। आमीन। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो इनका अभिषेक था, प्रभु के दास विल्करसन बताते हैं कि मेरा जो अभिषेक था वो खत्म होने लगा, प्रचार में बड़ा चेंज नहीं आने लगा, लोगों का दिल में बदलावट नहीं आने लगा, अद्भुत कार्य कम होने लगे। तो एक दिन वो परमेश्वर के पास जाके उन्होंने पूछा, खुदा तू मुझसे दूर क्यों हो गया, है ना, तू आजकल काम क्यों नहीं कर रहा, मैंने क्या पाप कर दिया, ऐसा मैंने क्या किया, आप मुझसे दूर क्यों हो गए, है ना। प्रभु ने बड़े ही मीठे आवाज में प्रभु के दास से बात किया, बच्चे मैं कहां तुझसे दूर हुआ, तू ही मुझसे दूर हो गया। मैं तो आज भी वाचा के अनुसार 12 से लेके 2 का तेरा इंतजार करता हूं, जो तूने मुझसे कहा था तू मेरे साथ बिताएगा, तू ही बिजी हो गया है। प्रभु के दास विल्करसन इस प्रकार से कहते हैं। उसके बाद प्रेज द लॉर्ड, जितनी बार आमीन उन्होंने उस दिन निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, 12 से लेके 2 बजे मैं परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाऊंगा, वो कोई संबंध मुझे अलग नहीं कर पाएगा। आज प्रियो, परमेश्वर भी जो हमसे चाहता है आमीन वो इतना ही है कि हम परमेश्वर के साथ एक संबंध रखें। आमीन। जब दाऊद आता है प्रेज द लॉर्ड शाऊल के पास, तो वो इस प्रकार से कहता है, मुझे कोई भाले वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो शेर को आमीन और बियर को मारा हुआ है परमेश्वर के नाम में। आमीन, है ना। आप जानते हो उसने इतने चौड़ में इस बात को क्यों कहा, क्योंकि था वो जंगल में, लेकिन संबंध उसका परमेश्वर के साथ था। प्रेज द लॉर्ड। इसी के लिए तो प्रेज द लॉर्ड इतने सुंदर गीतों को उसने गाया था। आमीन, है ना। एक संबंध था। आज परमेश्वर हमारे संबंध को देखना चाहता है। आज हमारे परिवार में परमेश्वर के साथ एक संबंध हो, आज हमारे कलीसिया में परमेश्वर के साथ एक संबंध हो। प्रेज द लॉर्ड। आज किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि लाइव में आओ या, है ना, मीटिंग में जुड़ो। अरे ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें आराधना करने को भी मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो एक संबंध जब आप बना लोगे प्रेज द लॉर्ड, तो ये सब कुछ बोरिंग नहीं लगेगा, ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जब हमारा संबंध घटेगा, शैतान का, है ना, अस्तित्व बड़ा दिखेगा। जब प्रेज द लॉर्ड हमारा संबंध परमेश्वर के साथ क्लोज होगा, प्रेज द लॉर्ड, है ना, शैतान का संबंध कम होता, या उसका प्रेज द लॉर्ड जो मूर्ति है या बड़ा चीज है वो सब कुछ कम होता दिखेगा। तीसरा और आखिरी चीज में आपको ये बताना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, सब लोग गोलियत के साइज को देख रहे थे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद मैं खत्म करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सब लोग गोलियत के साइज को देख रहे थे, सब लोग ये देख रहे थे कितना बड़ा है भाई, क्या कर लेगा ये सब करके। एक्चुअली में सब लोग उसे फिजिकली लड़ना चाहते थे। इसके लिए मैं आपका ध्यान 26वें वाक्य के बी में मैं लेकर आया। उसमें लिखा है, ये बेखतना फिलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर के सेना दलों को चुनौती दे रहा है। आपको समझ आया उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, ये बेखतना, हु इज दिस अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्टीन हु इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द पीपल ऑफ गॉड, है ना। सब लोग उसके तलवार को, उसके भाले को देख रहे थे। दाऊद ने क्या देखा पता है? वो अनसर्कमसाइज्ड है, वो बेखतना व्यक्ति है। कहने का मतलब, जब सब लोग फिजिकल युद्ध को देख रहे थे, दाऊद एक स्पिरिचुअल युद्ध को देख रहा था। वो कह रहा था, आमीन, दाऊद कहता
तुझे पता है इजराइल के लोग कौन है? इजराइल के लोग खतना रहित रहने वाले लोग है। कहने का मतलब दे आर सर्कमसाइज्ड पीपल। मतलब क्या? 8 डे सर्कमसिशन पाने वाले, खतना। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ एक कवेनेंट रिलेशनशिप में जुड़ने वाले लोग है। प्रियो, कवेनेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फर्क होता है। आप में से अगर कोई बिजनेस या ऑफिस में रहा होगा और या फिर आपने अपने कभी रेंट पे रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है लेकिन कवेनेंट एक्सपायर नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड, आपको समझ आया? प्रेज लॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। 11 महीने बाद रेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। कंपनी अगर लीज पे लिए 5 साल के लिए एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन कवेनेंट जो है वो कभी एक्सपायर नहीं होता है। और आज मैं आपको बताऊं दाऊद ने क्या कहा पता है? दाऊद ने कहा ये मैं खतना वाला व्यक्ति हूं। इजराइल के लोग खतना वाला व्यक्ति है। कहने का मतलब हम परमेश्वर के साथ एक कवेनेंट रिलेशनशिप में है। हम परमेश्वर के साथ कवेनेंट रिलेशनशिप में है तो बिना कवेनेंट वाला हमें क्या कर लेगा? समझ आया आपको? प्रेज द लॉर्ड। दुनिया का कोई भी सताव, प्रेज द लॉर्ड, मसीह के कलीसिया को खत्म नहीं कर सकता। आप जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा कलीसिया एक कवेनेंट में जुड़ चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान, पाताल, प्रेज द लॉर्ड, कोई भी व्यक्ति आ जाए, प्रेज द लॉर्ड, दुष्ट आत्मा भी आ जाए, कलीसिया को खत्म नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा है? पत्रस, तेरे ऊपर मैं कलीसिया को बनाऊंगा और पाताल की कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के लहू से, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, कलीसिया का स्थापना हुआ है। कहने का मतलब आदम की पसली से अगर हव्वा निकली है तो यहोवा के यीशु के पसली से कलीसिया का स्थापना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अगर वो यीशु को खत्म नहीं कर पाए, आमीन, तो कलीसिया को भी वो खत्म नहीं कर पाएंगे। प्रियो, आज कैसा भी सताव आए वो हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। ये समय डरने का नहीं है, ये समय दाऊद की तरह खड़े होकर बोलने का है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बेखतना या फिर जो यीशु के लहू में नहीं है, वो यीशु के लहू में रहने वाले लोगों के खिलाफ क्या कर सकते हैं? We are binded and we are controlled by the blood of Jesus। कहने का मतलब है यीशु कहता है तू स्वर्गदूतों को बुलाएगा तो स्वर्गदूत भी तेरे लिए आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा हमारे एरिया में मैं एक चीज बोलता हूं, प्रेज द लॉर्ड, है ना, मैं किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, है ना, लोग कभी कभी क्या होता है, मैं लोगों को बोलता हूं कि इधर चले जाते हैं, इधर, है ना, तो हम लोग हम रात को ऐसे क्या कहते हैं, ब्लैंकेट बांटने जाते, ब्लैंकेट बांटने। तो जब ब्लैंकेट बांटने गए थे एक बार, तो ऐसे ब्लैंकेट, है ना, ठंड का समय था, है ना, और बिल्कुल 1 डिग्री सेल्सियस, आप जानते हैं दिल्ली में कितना ठंड पड़ जाता है, तो भयंकर सुबह 4 बजे का टाइम था। तो हम लोग एक जगह पे पहुंचे, और एक जगह पे पहुंचे तो, है ना, मेरे साथ कुछ लड़के और थे, है ना, तो हम लोग सब, है ना, हम लोग ने क्या किया, चाय निकाला और सबको दे रहे थे। तो हमने देखा कि रोड पे लोग क्या है, सो रहे, लोग, काफी सारे लोग सो रहे। तो सबके ऊपर हम ब्लैंकेट डाल के फिर हम लोग वापस आते, तो हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा भी क्या है, एक परिवार के साथ ऐसा लेटा हुआ है। तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला, फिर वो सिकुड़ रहे थे, तो फिर हमने उस फैमिली को उठा के गरम गरम चाय और कुछ खाने के लिए दिया। तो वो खा रहे थे और वो चाय पी रहे थे। तो मेरे साथ जो लड़का था, आई मीन, जो, उसने इस प्रकार से पूछा, भाई साहब, है ना, आप इतने ठंड में इधर क्यों लेटे हुए, क्या बात है? तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा जो है वो बीमार है, किसी ने बोला यहाँ माथा टेक लोगे तो ठीक हो जाएगा करके, है ना, यहाँ पे ठीक हो जाएगा करके। तो उन्होंने बोला सर इतनी ठंड में तो आपके बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, आप, है ना, कहीं और क्यों नहीं रहते? कहते सर पैसा नहीं है, लोगों ने बोला यहीं आके कुछ हो सकता है करके। तो उसने बोला मैं आपको किसी के बारे में बताता हूँ। तो उसने पूछा कि कहाँ से आया? तो उन्होंने बोला मैं हिमाचल से आया हूँ करके, है ना। तो बोला कि भाई साहब क्या करे, पैसे नहीं है होटल में रुकने का। तो उन्होंने इस प्रकार से बोला, अरे आपको मैं किसी के बारे में बताता हूँ, आपको उसके लिए हिमाचल से आमीन दिल्ली भी आने की जरूरत नहीं है, है ना। उन्होंने बोला ऐसा कौन सा बाबा? उन्होंने कहा उनका नाम यीशु बाबा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अगर आप हिमाचल पे रहो, आमीन, और हिमाचल पे रहकर अगर आप अपने घर के अंदर बैठकर कंबल डालकर भी, प्रेज द लॉर्ड, शॉल ओढ़कर भी खुदा को पुकारोगे तो तेरे हिमाचल के घर के अंदर उतर कर आने वाला है खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। वो तेरे बच्चे को चंगाई देगा। मेरा कहने का मतलब है प्रियो, ये डरने का समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अगर आपके पास है, बोलना है तो बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल डाल देंगे, नहीं तो सर काट देंगे। ये तो होना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने तो पहले ही बोल दिया था, आमीन, ये सब होना है। आमीन। देखिए, डर उसी को लगता है जो दो तीन बार पिटा नहीं है, जो 2-3 बार पिट जाता है, प्रेज द लॉर्ड, उसे तो वैसे ही पता है, आमीन, ये तो होना ही होना है ना। तो इसके लिए कहने
का मतलब, मुझे उस दिन उस बच्चे का आंसर बड़ा अच्छा लगा। हमें वो खड़ा भी ऐसी जगह पे था कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो खुद एक दूसरे एक परिवार से आया था, तो उसने कहा मेरा खुदा कहीं भी उतर सकता है। वहीं खड़े होकर प्रार्थना करना शुरू किया। कहने का मतलब है आज परमेश्वर कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आप और मैं यीशु के लहू में हर बैटल को फिजिकली मत लड़ने जाइए, हर बैटल को स्पिरिचुअली लड़ना शुरू कीजिए। नहीं समझ आया? मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहता है, अगर तुम्हें प्रेज द लॉर्ड किसी को बांधना है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग मैन को बाइंड करो। प्रेज द लॉर्ड कहने का मतलब है स्पिरिचुअली अगर आप बाइंड करोगे तो प्रेज द लॉर्ड फिजिकली अपने आप कार्य होना शुरू होगा। नहीं समझ आया तो फिर से समझाता हूं। हन्ना ने प्रेज द लॉर्ड घर पे जाके प्रार्थना है ना, मंदिर में जाके स्पिरिचुअली प्रेयर किया तो उसके कोक में इफेक्ट होना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड हागार ने अपने आंसू प्रेज द लॉर्ड डेजर्ट में बहाया, प्रेज द लॉर्ड पानी अपने आप वहां पे आ गया। कहने का मतलब है स्पिरिचुअली अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो, फिजिकली परमेश्वर आपके और मेरे लिए एक अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। प्रियो, आमीन, वो द बैटल इज इन द स्पिरिचुअल रेलम। प्रभु के दास प्रेज द लॉर्ड इस प्रकार से है ना, पौलुस इस प्रकार से बड़े है ना, वो बड़े स्पष्ट करते हैं प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड कि किस प्रकार से स्पिरिचुअल बैटल के बारे में प्रेज द लॉर्ड वो बड़े अच्छी तरीके से बताते, क्योंकि वो खुद तीसरे स्वर्ग तक गए थे और उन्होंने इस प्रकार से वर्णन भी किया। उधर की बातें मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को अलाउड नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ी बहुत बातें वो बता देते हैं। आमीन, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जब आप स्वर्ग की, और काफी लोगों को ना है ना, मैं आजकल ये कोशिश करता हूं है ना, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं प्रेज लॉर्ड, जिस इंसान को एक बार स्वर्ग का दर्शन मिल जाए ना प्रेज लॉर्ड, उसे धरती के चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। आमीन, स्वर्ग का दर्शन अगर आप देखेंगे तो आइज़ाया और एजेकिएल की किताब में क्या सुंदर तरीके से लिखा है। आइज़ाया में तो लिखा है वो स्वर्ग में बैठा खुदा, वो एक बड़े सिंहासन में है, चारों तरफ सराफिम। कौन है ये सराफ? प्रेज द लॉर्ड, बाइबल बताती है 6 पंखों वाले है ना, भयंकर ताकतवर वाले, वो परमेश्वर के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? वो घूमे बैठे हैं और वो परमेश्वर की ग्लोरी को बचाते हैं। अगर वो नहीं है तो एजेकिएल की किताब बताती है सराफ के बाहर अगर आप देखेंगे तो चरूब करके स्वर्गदूत है, जिनके 6 पंख है और उनके 4 सर है, भयंकर शक्तिशाली। अगर आपको उसका रेफरेंस चाहिए तो अगर आप जाएंगे तो आपको उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, 3रे अध्याय में तो लिखा है कि ट्री ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाला एक चरूब था, जिसके बारे में वर्णन है। प्रेज द लॉर्ड, तो इतना बड़ा स्वर्गदूत, अगर वो भी नहीं है तो मैं आपको एक और स्वर्गदूत बताता हूं। एजेकिएल की नबी की किताब में उसके नीचे लिखा है कि उसी स्वर्गदूत के नीचे आमीन एक व्हील जैसा स्वर्गदूत है। व्हील जैसा, ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। व्हील जैसा स्वर्ग जिसकी सिर्फ आंखें हैं, आमीन, उसके बारे में बताया जाता है। प्रार्थना को प्रेज द लॉर्ड है ना लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाने वाले स्वर्गदूत भी है। प्रकाशित वाक्य बताते, कहने का मतलब है स्वर्गदूतों के बारे में जब आप सीखेंगे आपको पता लगेगा हम अकेले नहीं हैं। आमीन, लोगों ने हमें बोल दिया मिनिस्ट्री में आप अकेले हैं, घर पे आप अकेले हैं, वो है ना, तुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। किसने कह दिया आपको और मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है? आमीन, जब यूहन्ना ने दर्शन देखा तो उसने कहा मैंने देखा 10,000 इंटू 10,000 लोग आमीन स्वर्गदूत खड़े हैं और वो जिंदा परमेश्वर यहोवा की आराधना कर रहे हैं। अगर 10,000 इंटू 10,000 का क्वायर ही है तो जरा सोच आर्मी में कितने होंगे। प्रेज द लॉर्ड, जरा सोच आपके और मेरे लिए कितने होंगे। प्रियो, आज हम अकेले नहीं है, सेवकाई में आप अकेले नहीं है, घर पे आप अकेले नहीं है। आमीन, आपकी और मेरे लिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है। जब दाऊद वहां पे गया तो दाऊद ने क्या देखा पता है? मैं स्वर्गदूतों के बाड़े में रहने वाला, परमेश्वर के साथ कवेनेंट में रहने वाला, मेरे को तो तलवार की भी जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअली अगर मैं जीत गया तो इसका सर काट दूंगा। एक पत्थर काफी था उसको गिराने के लिए। कहने का मतलब है इतना स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। खुदा हमारा सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് മുട്ടു മടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ആരുടെ കൊട്ടാരമാ? പാതാളത്തിന്റെ കൊട്ടാരം വരെ കുലുക്കാനുള്ള ശക്തി നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട്. प्रेज लॉर्ड, अगर आप एक बार घुटने टेक कर प्रार्थना कर ले तो पाताल में रहने वाले शैतान को, प्रेज लॉर्ड, मध्य आकाश में रहने वाले हर एक दुष्टात्मा को प्रेज लॉर्ड आमीन घुटना टेकना पड़ेगा। वो प्रार्थना आपके और मेरे प्रार्थना में परमेश्वर ने प्रेज लॉर्ड वो ताकत दिया हुआ है। आज हम अकेले नहीं है प्रियो। तो अपने जाइंट्स को देखकर 3 चीजें जरूर याद रखिए। आप हार मानेंगे तो
आपका परिवार हार मानेगा, आप हार मानेंगे, आपका कलीसिया हार मानेगा। आप अगर गिव अप करेंगे तो आपके साथ वाला गिव अप करेगा। आज क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं, लॉर्ड आई वोंट गिव अप? कुछ विषयों के ऊपर अगर आपने आज गिव अप किया है तो क्या आप एक बार बोल सकते हैं, लॉर्ड उस विषय के ऊपर मैं गिव अप नहीं करूंगा, मेरे कलीसिया के ऊपर मैं गिव अप नहीं करूंगा, मेरे देश के ऊपर मैं गिव अप नहीं करूंगा, मेरे फैमिली के ऊपर मैं गिव अप नहीं करूंगा, मेरे बच्चे के ऊपर मैं गिव अप नहीं करूंगा, मेरे परिवार के ऊपर मैं गिव अप नहीं करूंगा, ओ मेरे कोई भी फाइनेंस के ऊपर मैं गिव अप नहीं करूंगा। ओ आई एम डिक्लेयरिंग लॉर्ड फादर दैट यू आर विद मी, मैं गिव अप नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप दूसरा चीज आज परमेश्वर के साथ कह सकते, खुदा हमारे तेरे साथ एक संबंध में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोरोना वायरस ने परमेश्वर के साथ हमारा संबंध थोड़ा और बढ़िया कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पहले तो हम ये बोलते थे प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता, आज तो सिर्फ टाइम ही प्रार्थना करने को इतना मिल गया है ना। हम बड़े बिजी रहते, किसी से पूछते ये क्या हुआ, इतना बिजी, भयंकर इतना बिजी, इतना है ना। मेरे कुछ जान पहचान के लोग हमेशा इतना बिजी थे कि परमेश्वर उनका नौकरी चला गया है ना, तो अभी बिजी हट के अब सब मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने के लिए सब प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ संबंध में वापस आना बहुत जरूरी है। प्रियो, मैं किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं हूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको बताने के लिए हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमें मसीह लोगों के लिए कोरोना वायरस एक अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, एक शेक मिला है। मुझे ऐसे लगता है 1920 में मैंने पिछली बार प्रेज द लॉर्ड आईपीसी के पीवाईपी गुजरात के मीटिंग में मैंने ये बोला था और मैं फिर ये बोलूंगा, 1920 में जब स्पेनिश फ्लू आया तो परमेश्वर ने कई सारे प्रभु के दासों को उठाया, आमीन। और उस फ्लू के बाद परमेश्वर ने कई सारे जवानों को, बुजुर्गों को उठाया और उन्होंने परमेश्वर की बड़ी सेवा की। मेरा मन, मेरा दिल, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूं, ये पैंडेमिक आप जानते क्यों आया है? क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा रिवाइवल, इनफैक्ट रिवाइवल, आप सोच रहे रिवाइवल कब आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं ये रिवाइवल चल रहा है प्रियो। दिस इज कॉल्ड रिवाइवल, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पहले तो एक कन्वेंशन रखना पड़ता था कि 1000-2000 लोग इकट्ठे हो जाए, प्रेज द लॉर्ड। आज कन्वेंशन की भी जरूरत नहीं है। अभी आप अपना फेसबुक जरा स्क्रॉल करके देखिए, आमीन, कम से कम 10,000 लोग अभी मिनिमम क्या है, किसी ना किसी जगह पर बैठकर प्रेयर कर रहे होंगे, सिर्फ आपके फेसबुक पर। दिस इज रिवाइवल, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। आजकल प्रेज द लॉर्ड घर के अंदर प्रार्थना, घर के बाहर प्रार्थना, पार्क में प्रार्थना, है ना, यूट्यूब में प्रार्थना, जूम में प्रार्थना, गूगल मीट में प्रार्थना, कोई भी उठा लो, हर जगह बस प्रार्थना ही चल रहा है। दिस इज रिवाइवल, आमीन। और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। जब ये खत्म होगा प्रियो, something amazing is going to happen. कुछ जवान, कुछ बुजुर्ग उठने जा रहे हैं, आमीन। शत्रु ने जिनको बांध के रखा है, मेरे को ऐसे लगता है ये जो सीजन है, ये गोलायत का सीजन है, लेकिन परमेश्वर ऑपोजिट साइड में कुछ दाऊद को भी तैयार कर रहा है। मैं नहीं जानता आप में से कितने भाई बहन ये विश्वास करते हैं कि हम वो दाऊद है, प्रेज द लॉर्ड, जिसे परमेश्वर तैयार कर रहा है। बेटी तू निरुत्साह मत हो, प्रेज द लॉर्ड, बेटे तू निरुत्साह मत हो, प्रेज द लॉर्ड। तेरे अंदर, प्रेज द लॉर्ड, शाऊल का आत्मा नहीं है, तेरे अंदर दाऊद के ऊपर वास करने वाला आत्मा है। कुछ गोलायत के सामने खुदा आपको उठाने, कितने लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं अपने घर के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, यस आई एम गोइंग टू बी यूज्ड लाइक डेविड। ओ पिछले दिनों में आपने छोटे छोटे युद्ध में जीते होंगे, शेर को मारा या फिर एक बियर को मारा, लेकिन परमेश्वर एक बड़े युद्ध को तेरे सामने क्यों रखा? क्योंकि लोग देखकर कहेंगे ये बच्चा है, ये तो एक नॉर्मल सा विश्वासी है, ये तो एक छोटा सा पास्टर है, ये तो एक छोटी सी प्रभु की दासी है, लेकिन उन्हें क्या पता जो बड़े बड़े लोग कर नहीं पाएंगे, तेरे अंदर का पवित्र आत्मा वो बड़ा कार्य तेरे द्वारा कराएगा, and you will do it, people of God. I still say to you, this generation, ये जनरेशन देखेगा भारत देश के लिए सबसे बड़ा रिवाइवल, ये जनरेशन देखेगा। और रिवाइवल नहीं है प्रियो, ये कोई रिवाइवल की बात नहीं है। आप जानते हैं ये क्या है, हमें ये परमेश्वर का आग फैलने जा रहा है, प्रेज लॉर्ड, ये फैल रहा है, एंड दिस विल स्प्रेड टू द वेरी विलेजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे राज्य में फैलने जा रहा है, आमीन। नॉर्थ इंडिया में भी फैलने जा रहा है ना। नॉर्थ इंडिया के बारे में जब भी सोचता हूं दुख होता है, प्रेज लॉर्ड, आमीन, क्योंकि कई सारे प्रभु के दास लोगों ने सब कुछ छोड़कर आए हैं, प्रेज लॉर्ड। आई एम telling you, people of God, I mean, समय आ गया है, cities will be
given to us, states will be given to us, the northern part of our country will be known in the name of Jesus. यीशु के नाम से वो जाना जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. किसी भी प्रभु के दास का या दासी का जो हमसे पहले थे, उनका प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा. आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं हो रहा है प्रभु के दास लोगों. हमें एक जनरेशन खड़ा हो रहा है, उन्हें तैयार किया जा रहा है और वो खड़े होंगे यीशु के नाम से. Something powerful is going to happen. Praise the Lord. In fact, it is happening right now. वो अभी हो रहा है. Praise the Lord. तो आइए मिलके एक साथ हम लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे. Praise the Lord. आप जहां कहीं भी है, आमीन, अगर आप मेरे साथ प्रार्थना में हैं, प्रेज द लॉर्ड, अगर आप अन्य भाषा में आराधना कर सकते हैं तो करिएगा. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. अगर आप आवाज उठा के करना चाहते हैं तो करिएगा. ताली बजा के करना चाहते हैं करिएगा. प्रेज द लॉर्ड. बिकॉज മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മിണ്ടാനിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല, ये चुप रहने का समय नहीं है प्रियो. कलीसिया पिछले 50 साल कलीसिया बस चुपी थी, चुप्पी थी. Praise the Lord. This is not the time to be quiet. No, people of God, we need to get up and we need to pray. हमें प्रार्थना करना है. Praise the Lord. लोग कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़े. कोई आपको चुबा रहा है, कोई आपको नीचे कर रहा है, कोई आपके बारे में बोल रहा है, सब भूल जाइए. खुदा जो दाऊद के साथ था वो आज आपके साथ है प्रियो. Praise the Lord. आप प्रार्थना कीजिए. वो हो सकता है आज आपके घर के भीतर परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करे. Praise the Lord. आज आपके मिनिस्ट्री के लिए तो मिनिस्ट्री के लिए कीजिए, परिवार के लिए तो परिवार के लिए, आज आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए तो पर्सनल ग्रोथ के लिए. आइए मिलके अपनी आंखें बंद करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. और मिलके इस प्रकार से एक साथ मिलके प्रार्थना करेंगे. जिंदा परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा. ये गोलियात टल जाएगा, ये गोलियात टल जाएगा, ये गोलियात टल जाएगा ओ तेरी आत्मा के द्वारा. यस खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी, आपके दासों के साथ, आपकी दासियों के साथ, आपके बेटे और बेटियों के साथ, आपके बच्चों के साथ खुदा बाप प्रभु जी, दिल्ली से, गुजरात से, परमेश्वर प्रभु जी इंडिया के बाहर से, प्रभु जी जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, सारे भाई बहनों के साथ एक साथ प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जुड़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं. परमेश्वर खुदा बाप प्रभु जी, हमारे मन हमारी आत्मा एक होकर खुदा बाप स्वर्ग की ओर उठकर हम प्रार्थना कर रहे होगा. परमेश्वर प्रभु जी, हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा जाइंट खड़ा है प्रभु जी. एक बड़े हमारे सेवकाई के खिलाफ एक जाइंट खड़ा है. ओ प्रभु जी, हमारे चंगाई के खिलाफ एक बड़ा जाइंट खड़ा है. हमारे बच्चों के खिलाफ एक बड़ा जाइंट खड़ा है. परमेश्वर आपके काम के खिलाफ एक बड़ा जाइंट खड़ा है. लेकिन आज खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी हम उसे फिजिकली नहीं लड़ते, आज स्पिरिचुअली खुदा हम कहते हैं खुदा बाप आपके लहू से खुदा बाप सारा का सारा परमेश्वर जितना भी बंधन है खुदा, वो जितने भी स्पिरिचुअल फोर्सेस है खुदा, परमेश्वर प्रभु जी को हट जाए खुदा बाप. प्रभु जी अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु जी सीरिया के खिलाफ, एलिया के लिए परमेश्वर प्रभु जी आपने प्रभु जी स्वर्गदूतों को भेजा. तो खुदा आज हम प्रार्थना करते आत्मिक मंडलों में खुदा बाप कुछ स्वर्गदूतों को गुजरात की और कुछ घरों की ओर जो हमें देख रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो कुछ पवित्र आत्मा की ताकतों को उंडेलिए परमेश्वर. वो खुदा कुछ स्वर्गदूतों को उंडेलिए खुदा. वो प्रभु जी कुछ अभिषेक को उंडेलिए. वो खुदा बाप जिनके जुबानों को बंद कर दिया गया वो हटाकर खुदा वो हमारे जुबान को पवित्र आत्मा से भरी हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप. आज सेवकाइयों में परमेश्वर प्रभु जी, आज परिवारों में खुदा बाप एक बहुत बड़ा चेंज आए. हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप. वो जितने लोग अपने दिल से कह रहे हैं खुदा, वो परमेश्वर एक राह खोल, एक अद्भुत कार्य खोल. गोलियात को गिरा. आज मैं प्रार्थना करता हूं कुछ दाऊदों को, वो कुछ दाऊद को, some Davids in this place. Yes, in the name of Jesus. रेखे. ओ इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर कुछ दाऊद को खुदा बाप हमारे बीच में खड़ा कर खुदा बाप. वो हर व्यक्ति
व्यक्ति के अंदर एक पवित्र आत्मा दाऊद को खड़ा करे। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, हम गोलियात को नहीं देखते, हमारे ऊपर का अभिषेक जो परमेश्वर का है उस पे हम भरोसा करते हैं परमेश्वर। एक और बार खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी इस कलीसिया को आपके सम्मुख ले आते हैं, प्रभु के दास पास्टर विजय को ले आते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप उन्हें आशीषित कीजिएगा खुदा बाप। प्रभु जी आपके उपस्थिति में खुदा बाप सेवकाई कर रहे हैं, हम अकेले नहीं है खुदा बाप। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप उस देश के दुष्ट आत्माओं को हटाने के लिए स्वर्गदूत उधर उतर सके परमेश्वर। वो सिटी जगह परमेश्वर प्रभु जी खुदा बाप प्रभु जी उसे प्रभु जी रिसीव करने के लिए प्रभु जी मसीह का नाम बनने के लिए आपने उपयोग कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं खुदा। एक और बार धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी खुदा बाप। हम हम्बली आपके सामने आते हैं खुदा बाप प्रभु जी। हम ना बड़े लेकिन आप बड़े खुदा बाप प्रभु जी। अपने प्रभु जी रेस में, हमारे रेस में खुदा बाप अंत तक हमें विश्वास योग्य बनाइएगा परमेश्वर प्रभु जी। विश्वास करते हैं इस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को खुदा बाप परमेश्वर, वेस्ट और ईस्ट और साउथ को खुदा बाप आप छुएंगे, हमारे यूनियन टेरिटरीज को आप छुएंगे खुदा बाप। एक और बार धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। सारा आदर और सारा महिमा प्रभु जी आपको और सिर्फ आपको देते हैं। सारा आदर और सारा महिमा सिर्फ आपको और सिर्फ आपको देते हैं। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को इकलौते जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। विश्वास करने वाले एक साथ कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार मैं पास्टर जी का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। और जितने भी प्रभु के दास लोग जुड़े हैं उन सबका मैं एक और बार धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों ने प्रार्थना किया, आप लोगों के सामने इस प्रकार से प्रेज द लॉर्ड है ना परमेश्वर का वचन बांटने को प्रेज द लॉर्ड मुझे मौका मिला, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद करूंगा रंजू ब्रदर का भी, ब्लेस्ड होप का भी प्रेज द लॉर्ड कि इतना अच्छा मौका दिया परमेश्वर, उन्हें भी उपयोग करे। यही हमारी प्रार्थना है प्रेज द लॉर्ड, नॉर्थ इंडिया में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो सके और मुझे विश्वास है प्रेज द लॉर्ड कि होगा। आई मीन 100% ये होगा प्रेज द लॉर्ड, आई मीन। थैंक यू सो मच। कुछ अगर मेरे मुंह से अगर कुछ गलत है ना, कुछ हो गया तो प्लीज माफ भी कीजिएगा। आई मीन अपना ही बच्चा समझिएगा प्रेज द लॉर्ड, आई मीन। और एनकरेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीषित करे और जल्दी हम लोग फिर से प्रेज द लॉर्ड होगा तो होगा, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। शालोम। गॉड ब्लेस यू।